बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सहल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेंटेंस को और फिर सेंटेंस के कई टाइप्स को भी हम डिस्कस करेंगे। तो आप इस वीडियो को देखने के साथ साथ नोट्स भी बना लिया करें ताकि फिर आपको बाद में रिवीजन के लिए आसानी हो। तो चलिए बढ़ते हैं सेंटेंस की तरफ। सो व्हाट इज अ सेंटेंस? अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। सो सेंटेंस हमारे साथ अल्फाज का वो मजमू होता है जिससे हम कंप्लीट मानी ले सके कि ये बंदा क्या कह रहा है या बंदा क्या कह रही है, कि हम उस पर समझ जाए। ए सेंटेंस मस्ट हैव ए सब्जेक्ट। सेंटेंस में हमारे साथ सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगा और उससे हमें एक कंप्लीट आइडिया मिल रही हो। जिस तरह एग्जांपल, शी इज रीडिंग ए बुक, हमें एक कंप्लीट आइडिया मिल रहा है। इसमें सब्जेक्ट भी है, इसमें वर्ब भी है और हमें आइडिया भी मिल रहा है कि वो एक किताब पढ़ रही है। So that was all about sentence. Now हम types की तरफ बढ़ते हैं. So the first type of sentence by purpose, that is a declarative sentence. So it is used to state information or facts. ये हमें कुछ ना कुछ मालूमात या फिर हकीकत बताते हैं। जिस तरह example, I like tea. Information, she lives in Peshawar. It's also information. English is important. Now it's a fact. सो हमें कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन या फिर अगर हकीकत बताए तो वहाँ पे हम यूज कर रहे हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस। अच्छा जी, द सेकंड टाइप ऑफ सेंटेंस दैट इज द इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सो इट इज यूज टू आस्क क्वेश्चंस, ये हम क्वेश्चंस के लिए यूज करते हैं। एग्जांपल्स, व्हाट इज योर नेम, वेयर आर यू गोइंग, डिड यू कंप्लीट योर होमवर्क। So we are using these kind of sentences for questions. The third type of sentence, that is imperative sentence. So it is used to give orders, requests or advice. So हम imperative sentence को या तो orders, requests या फिर advice के लिए use करते हैं. Examples, open the door. If I say open the door, so it's an order. Request के लिए अगर मैं use करूँ, so please help me. और advice के लिए study regularly. So these are all imperative sentences. The fourth type of sentence, that is exclamatory sentence. So used to express strong feelings. अगर कोई सेंटेंस हमें इमोशंस या फिर फीलिंग्स दिखाए तो समझ जाए कि वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। जिस तरह व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, सो इट इज एन exclamatory sentence. Oh no, I lost my keys. How smart you are. So these are all exclamatory sentences. The fifth type of sentence, that is optative sentence, and it is used to express wishes, hopes or prayers. तो हम ये prayers, hopes या फिर wishes के लिए use करते हैं। जिस तरह example में, may you succeed in life, so a kind of wish. May Allah bless you and wish you all the best. So these are all showing hopes, wishes or prayers. The sixth type of sentence, that is assertive sentence. So basically we consider assertive sentence as a strong form of declarative sentence. It is used to state a fact, opinion or information, or to state something strongly. Examples, I believe in hard work. So actually ये भी declarative sentence की तरह है, लेकिन हम इसको उसकी एक strong form consider करते हैं. He is an honest man. English learning builds confidence. And the seventh type of sentence, that is negative sentence. So it is used to deny or negate a statement. अगर किसी स्टेटमेंट में इनकार आए तो वहाँ पे हम समझ जाए कि नेगेटिव सेंटेंस यूज कर रहे. Examples, I do not like tea. So negation, she has never been late. Negation, he cannot solve this problem. It also shows negation. The eighth type of sentence, that is positive sentence or affirmative sentence. So to state something positively, अगर कोई चीज़ हम positively कहना चाहे तो हम वहाँ पे affirmative sentence use करेंगे. जिस तरह I like coffee. Now this is a positive sentence. She has completed her work. A positive sentence. They are ready for the test. Again a positive sentence. The ninth type of sentence, that is conditional sentence. So we are using it to show conditions and results. Examples, if you hard work, or if you work hard you will succeed. So now it is a condition. If you work hard, so at the end you will get succeeded. If you do not work hard, so you will get fail.
these kind of conditions are using with the help of condition sentence. And for result, if it rains we will stay home. So if it rains we will stay home, this is a result if it rains. Okay, the 10th type of sentence, that is emphatic sentence, and it is used to give a strong stress or strong emphasis. Like if I say I do respect my teachers, if I remove this do, again I respect my teachers, ये sentence फिर भी सही है, लेकिन अब इसमें मैं अगर do शामिल करूँ ना तो I do respect my teacher. Now here I show strong stress or strong emphasis in this sentence. The next one, he did complete the task, इसमें भी emphasis और stress show हो रहा है. अच्छा जी, now types of sentences by structure. So the first type of sentence by structure, that is simple sentence. It contains one independent clause. सिंपल सेंटेंस में हमारे साथ सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा, जिस तरह शी रीड्स डेली, वन इंडिपेंडेंट क्लॉज. आई एम लर्निंग इंग्लिश, this is also one independent clause and it is a sample sentence. The second one is compound sentence. So contains two independent clauses joined by coordinating conjunction. So इसमें दो independent clauses होंगे और उसको coordinating conjunction के थ्रू join किया होगा. Examples: I was tired, comma, but I work hard. Second sentence, ये भी एक independent clause या फिर sentence हो, ये भी एक independent clause हुआ. Okay, so दोनों हम but के थ्रू join कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे हम use कर रहे हैं coordinating conjunction और ये एक compound sentence हुआ. She studied, comma, and she passed. So this is also a compound sentence. Why? She studied एक हमारे साथ independent clause हुआ and she passed दूसरा independent clause हुआ. और ये किसके थ्रू ज्वाइन हुआ है? ये एंड के थ्रू. और एंड क्या चीज है? ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है. ओके, third type of sentence, that is complex sentence. So it contains one independent clause and at least one डिपेंडेंट क्लॉज. डिपेंडेंट क्लॉज हमारे साथ एक से ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन इंडिपेंडेंट क्लॉज हमारे साथ सिर्फ एक ही होगा. सही है, और ये हमारे साथ ज्वाइन हो गए थ्रू सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन या फिर रिलेटिव प्रोनाउन के थ्रू हमारे साथ ये ज्वाइन होंगे. सही है, तो जिसमें हम ये इंडिपेंडेंट सेंटेंस बोल रहे हैं ना, तो हम उनको मेन सेंटेंस कह रहे हैं या फिर हम उनको मेन क्लॉज कह रहे हैं, और डिपेंडेंट को हम फिर सबऑर्डिनेटिंग कहते हैं. ओके, और ये डिपेंडेंट या फिर सबऑर्डिनेटिंग हमेशा ही मेन सेंटेंस पे या मेन क्लॉज पे डिपेंड करेगा. ये आप जहन में बातें याद रखें. एग्जाम्पल्स: आई स्टेड होम बिकॉज इट वॉज रेनिंग. लेकिन अगर इसमें अब देखिए, आई स्टेड होम ये हमारे साथ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और बिकॉज इट वॉज रेनिंग ये एक डिपेंडेंट क्लॉज. ये बिकॉज इट वॉज रेनिंग एक डिपेंडेंट क्लॉज इस इंडिपेंडेंट पे डिपेंड कर रहा है. क्या है वो? आई स्टेड होम. इसके बिना ये सेंटेंस इनकम्प्लीट है, लेकिन अगर मैं इससे बिकॉज इट वॉज रेनिंग हटा लूँ तो आई स्टेड होम फिर भी सही है. सही है, ओके. अगर हमारे साथ कोई डिपेंडेंट क्लॉज किसी सेंटेंस में पहले आए तो फिर हम उसके बाद कॉमा लगा के डिपेंडेंट क्लॉजेस के साथ ऐड करेंगे. जिस तरह ऑल दो ही इज पुअर, कॉमा, ही इज ऑनेस्ट. सो ऑल दो ही इज पुअर हमारे साथ ये एक डिपेंडेंट क्लॉज हुआ, और उसके बाद हमने इंडिपेंडेंट क्लॉज उसके साथ कॉमा के थ्रू ऐड किया हुआ है. ओके, एंड हमेशा आप याद रखें कि हमारे साथ ये डिपेंडेंट क्लॉज हमेशा ही डिपेंड करेगा इंडिपेंडेंट क्लॉज पे. जिस तरह ऑल दो ही इज पुअर, ये हमारे साथ एक डिपेंडेंट क्लॉज है, तो ये डिपेंड कर रहा है किस चीज पे? ही इज ऑनेस्ट पे, और वो हमारे साथ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है. चलिए जी, द फोर्थ एंड लास्ट फॉर्म ऑफ सेंटेंस, दैट इज कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. सो ये कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो है हमारे साथ, इसमें एटलीस्ट टू इंडिपेंडेंट क्लॉज होंगे और एटलीस्ट वन डिपेंडेंट क्लॉज होगा. एग्जाम्पल्स: आई वांटेड टू गो आउट बट आई स्टेड होम बिकॉज इट वॉज रेनिंग. अब देखिए इसमें ये आई वांटेड टू गो आउट ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हुआ, आई स्टेड होम दूसरा इंडिपेंडेंट क्लॉज हुआ, और इसमें बिकॉज इट वाज रेनिंग ये एक डिपेंडेंट क्लॉज हुआ. ओके, सो दिस इज ए कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. तो आज के लिए इतना ही. इंशाल्लाह अगर जिंदगी है तो फिर अगली वीडियो में मुलाकात होगी. तब तक के लिए आप खुद भी सीखिए और दूसरों को भी सिखाए, और मुझे अपने दुआओं में ज़रूर याद रखें. मैं हूँ आप सबका सहल. अस्सलाम वालेकुम.